friendly, light in weight, and big in impact. Whether you're a holistic health enthusiast, high achiever, or someone aiming to do better, find a sense of belonging in a network of like-minded people seeking a fulfilling future. Healy, frequencies for your life. Can you feel vibrations? Can you feel energy? Can you feel frequencies? Vibrations, energy, frequencies. Feel the Healy. अरे भाई hello everyone. How's everyone? And I am here to welcome all of you in this series of expert speaker program that we have started last month and this month and onwards. We are going to pick up the subject matter experts for our Healy family. So, I'm here to welcome all of you, and I can see a good amount of participation in this program. I'm so glad to welcome all of you. So, my name is Alok Ojha, and I'm the country sales head for Healy World in India. And today, the program that we started last month was was on the gold cycle, and this month we are going to continue to the next level of the gold cycle. And to take this forward, all of you, and I have a great privilege to welcome Dr. Raghu Arya as our distinguished speaker. He is a profound distinguished doctor and a renowned time waver practitioner and traditional Chinese medicine practitioner for not one, not two, but over 2 decades. And with his global clientele base all across the world,
he has touched base more than 20,000 lives directly. And his holistic and healing experience, expertise, and he has empowered so many people in this field in their wellness journey. So as I always say that अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम. So now I welcome Dr. Raghu Arya from Hyderabad, and to take this forward, to take this program forward. Dr. Raghu, can you hear me? Just say yes. Yes, yes. You can hear me. So and to take this program forward, we have a young entrepreneur from Surat, Krishi Shah, who's going to take this forward. Welcome, Krishi. How are you? Hello, I am doing great. Thank you so Excited? much for having me. Excited with this program? Super, super excited. Uh, बहुत बढ़िया thank you. है. Thank you so many. Thank you so much to both of you to having given me so many inputs in developing this engagement and through knowledge and expertise. And as I always say, there are a couple of things in this business, which is one is of course the product, the featuring, advantages, and the benefit of the product. And then of course we talk about the people, the right people who are there in the platform on this platform, and who are the ones we really want to reach out, and of course a system in which we can have all these things in a systematic way. So I am zipping now, and over to you, Dr. Raghu. Thank you so very much, and welcome to you, sir. Thank you so much, Alokji. Really, I'm really excited to meet you all people. And as of you all know, knowledge is power. So really, when first time I started promoting frequency therapies in the world of healing, I started learning first. So every day I used to learn. From 13 years, I'm learning about frequencies. Still, I am learning. Whatever knowledge I acquired in the field of frequencies, I wanted to share and empower the people towards frequencies. So why so? The first question. Because this kind of therapy or this kind of healing system is new to the world. But one thing I want to add here, the science and the frequencies, this is not new. This already, as being Indians, we all of know vibration, frequency, and energies. Only thing is that here we need to add technology with the device, that is heal. So first of all, why I like to promote healing? I can say only one word. The science and the Shastra, instead of science, I can say Shastra of India and technology of Germany, together healing system. So this attracted me to promote healing globally. So I started my journey as Alokji said. From past 13 years, I am promoting these frequencies to the people, and really, I find a lot of success story in my life, and which made me to talk in front of all of you. So today we are going to talk about gold cycle, as we have finished other some frequency we done already last week. So we are going to continue. So Krishi, Yes, so hello we doctor. continue that. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ. आई एम कृषि शाह और हमने लास्ट मंथ ही ये वाला एक मुहिम शुरू किया था कि हीली को सिर्फ देखना या उसके बारे में सुनना नहीं है, पर हीली को जानना है. एंड वी आर लकी टू हैव डॉक्टर रघु जिनके पास इतना नॉलेज है, एंड स्पेशल थैंक्स टू आलोक सर जिसका ये आइडिया था. तो लास्ट मंथ हमने गोल्ड साइकिल पे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 फ्रीक्वेंसीज कवर की थी, विच इज प्योर, केयर एंड बैलेंस. सो डॉक्टर, मैं आपको प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तीनों फ्रीक्वेंसी का हमको एक बार क्विक ब्रीफ दे दीजिए, और या फिर कह सकते हैं एक बार रिवाइज करवा दीजिए, ताकि हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार ब्रीफ मिल जाए, और जो लास्ट टाइम थे उनका एक बार रिवीजन हो जाए. सो ओवर टू यू डॉक्टर. यस, तो लास्ट टाइम हम गोल्ड साइकिल में शुरू करे थे. गोल्ड साइकिल ऐसा साइकिल है, जब हीली शुरू हुआ था इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में, तो फर्स्ट पेज था गोल्ड साइकिल. इसमें फर्स्ट प्रोग्राम है प्योर. हम लोग प्योर प्रोग्राम इतना लाइक करते थे स्टार्टिंग में. जो लोग प्रिवेंशन माने जैसे कि टायर्ड हो गए काम करके,
नहीं तो कोई वांटेड टू एक्सपीरियंस अबाउट द हीली। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 5 years बैक, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। कुछ भी हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना है हीली के बारे में, हीली बात करता क्या आपसे, ये दिखाना है, तो हम लोग पहला प्रोग्राम लगाते थे प्योर। उनको बोलते थे एक काम करो, आप टायर्ड हो के जो भी आए, हम डेमो देंगे आपको। जो लोग जब डेमो देते थे हम देखते थे कोई आप में से ज्यादा कौन टायर्ड हो गए। जो लोग ज्यादा टायर्ड हो गए ना, उन लोगों को हम लोग प्योर प्रोग्राम रन करते थे, तो उन लोगों को इमिडिएटली मालूम होता था हीली उनसे बात करा। So this is a wonderful frequency which we used to regularly pitch into the Healy frequency system. तो प्योर itself बॉडी का जो टॉक्सिन को रिलीव करने वाला इंफॉर्मेशन फील्ड। जब हीली फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल माइक्रो करंट मीन्स अपने जो बॉडी का करंट है उसको एनहांस करके अपने बॉडी के इंफॉर्मेशन फील्ड को कनेक्ट करना। ये एक अभी जो मैं दो बात बताया ना, इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी एंड इंफॉर्मेशन फील्ड, ये दोनों ऐसे चीज है कि सुनने में फर्स्ट टाइम जो भी सुनते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन रहता। मगर जो ऑलरेडी हीली यूज कर रहे हैं और हीली का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को मालूम है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अपने बॉडी करंट और इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी से हम लोग अपना बॉडी का इंफॉर्मेशन फील्ड को करेक्शन कर सकते। इंफॉर्मेशन फील्ड मतलब नथिंग बट मेमोरी, केवाईसी बोलते हैं हम लोग। अपने मेमोरी में हम रोज टी ऐड करते गए, थोड़े दिन में हमको चाय की आदत पड़ जाती है। इसी तरीके से हम लोग अगर पोल्यूशन में है, थोड़े दिन में अपने बॉडी को पोल्यूशन आदत पड़ जाएगी। लेट अस से एग्जांपल, आलोक जी दिल्ली में है, उनको तो मालूम है आज पोल्यूशन क्या चीज होने वाला है दिल्ली में। तो उससे क्या हो गया, पोल्यूशन से उनका बॉडी, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जा रहे हैं। तो ये प्योर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, ये क्या करेगा, जो पोल्यूशन अपने बॉडी को एडिक्ट नहीं हो वैसा अपने बॉडी में से पोल्यूशन को हटाने का वैसा ये काम करेगा। ये इसका हाईलाइट है। दूसरा केयर है, जब हम बॉडी को क्लीन करें उसके साथ क्या करना है, बॉडी को केयर भी करना है। केयर करने के लिए अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है। एग्जाम्पल, लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम और एलिमिनेशन सिस्टम। ऐसा बोलते गए तो अपने बॉडी जो चलता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से चलता है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एंडोक्राइनल सिस्टम। आज एंडोक्राइनल सिस्टम डिस्टर्ब होने से आप लोगों को सभी मालूम है, थायराइड सुने होंगे आप लोग। तो थायराइड जो है आज कॉमन हो गया। इसका मेन रीजन क्या होता है, एक बात देखे तो मेटाबॉलिकल इम्बैलेंस। तो केयर जो फ्रीक्वेंसी है, ये मेटाबॉलिक सिस्टम को सपोर्ट करने वाला एक वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है। और तीसरा फ्रीक्वेंसी बैलेंस। हम लोग बॉडी में से टॉक्सिन को डिटॉक्स करें प्योर में, और केयर में सिस्टम को केयर करें और बैलेंस करें। बैलेंस मतलब अपने बॉडी का जो सिस्टम में एनर्जी इम्बैलेंस होते रहता है। एग्जाम्पल, थोड़े लोग बोलते हैं हम लोग कुछ खाए तो गर्मी हो गया, कुछ खाए तो ठंडी हो गया, कुछ खाने से हम लोग का ऐसा हो रहा है, ये सब आप सुने होंगे। तो उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म में एक बार जाके देखे तो उनका सिस्टम में बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तो बैलेंस करने वाला एक्सलेंट प्रोग्राम है वो बैलेंस। तो अभी हीली जब हम शुरुआत करते हैं तो प्योर केयर बैलेंस से शुरुआत करते हैं। एक 15 डेज का वंडरफुल एक कोर्स है, व्हाट वी रिकमेंड टू द पीपल। जो लोग फर्स्ट टाइम हीली यूज करते हैं वो लोग प्योर केयर बैलेंस से यूज करते हैं। सुबह आपको प्योर लेना है, दोपहर में केयर लेना है, रात में बैलेंस लेना है। तो दिस इज अ प्रोटोकॉल, फर्स्ट प्रोटोकॉल व्हाट वी रिकमेंड एज पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो जब ये प्रोटोकॉल आप यूज करने के बाद आपके बॉडी का जो हीलिंग कैपेसिटी, हम लोग यहाँ एक डिवाइस बात कर रहे हैं, ये डिवाइस प्योरली हीलिंग डिवाइस है, इट इज नॉट ट्रीटिंग डिवाइस। मेडिकली कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपको जानना है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है बीमारी को जब एड्रेस करते हो, ट्रीटमेंट होता है। अगर हम वेलनेस के लिए बात करते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बात करते हैं, नहीं तो बॉडी को हीलिंग के लिए बात करते हैं, ये क्या होता है, बॉडी का सिस्टम होता है। तो बॉडी का सिस्टम को जागृत करने के लिए हीली का जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है प्योर केयर बैलेंस। तो ये प्रोटोकॉल में हमारा बॉडी कंप्लीट हील होके अपने बॉडी रेस्पॉन्ड करने के स्टेज को जाता है, यही प्योर केयर बैलेंस। यस, वंडरफुल डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इसको ऐसे 2 मिनट में हमको रिवाइज करवा दिया। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था।
और अभी इसमें आगे बढ़ते हुए अपनी अगली फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, जिसका नाम है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है रहना, प्रेजेंट रहना। तो अभी प्रेजेंट रहना और ये बीइंग फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द कनेक्शन डॉक्टर? क्या पर्पस है ये बीइंग फ्रीक्वेंसी डिजाइन करने का? करेक्ट। बीइंग फ्रीक्वेंसी, हम लोग अभी तक जो प्योर केयर बैलेंस बताया कृषि, वो एक फेज हो गया अपना बॉडी को ट्रीटमेंट करने का, हील करने का। अब दूसरा फेज हो गया बीइंग। ये बीइंग यहाँ से जो फेज होता है मेंटल रिलेटेड, माइंड रिलेटेड। अभी तक हम जो बात कर रहे फिजिकल बॉडी के लिए बात कर रहे थे, अभी जो बात करने वाले हैं वो हम लोग मेंटल माइंड के लिए बात करें। लास्ट टाइम भी बॉडी के लिए डेफिनेशन दिया था, फिर एक बार उसको मैं एक बार ट्यून करना चाह रहा हूँ। अपने बॉडी बना है 3 लेयर से, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। फिजिकल बॉडी का डेफिनेशन आप लोगों सभी को मालूम है। फिजिकल बॉडी बना है अपने ऑर्गन से एंड ऑर्गन बना है सेल से। ये तो हर प्रेजेंटेशन में आप लोग जानते हैं। वही इसी तरीके से अपने बॉडी में दूसरा बॉडी बोले, उसका नाम क्या है? मेंटल बॉडी, माइंड। माइंड बना है मेमोरी से। तो मेमोरी जो बना है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा बॉडी है स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी को हम लोग इंडियन स्पिरिचुअल सिस्टम में सोल बोलते हैं। आप लोग सोल बोल के सुने होंगे। प्राणा, उसको हम प्राणा बोलते हैं वैदिक धर्म में, और सोल बोलते हैं। सो ये जो बीइंग प्रोग्राम है ना, ये बीइंग प्रोग्राम फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को और स्पिरिचुअल बॉडी को, तीनों को अलाइन करने का प्रोग्राम, व्हाट वी कॉल्ड एज कनेक्टिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि ये बीइंग प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है। ये एक एंगल आप समझ लिए तो इसके साथ बहुत सारे आप फायदा उठा सकते हैं हेल्थ रिलेशन। उसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आज मेरे को आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन का मैं आंसर देते हुए मैं दूसरा सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेंटली। तो मेरा क्या हो गया? एब्सेंट माइंड है। थोड़ी देर में मेरा जो बताने का ढंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये ज्यादातर आप किस में देखते हो? बच्चों में देखते रहते हो। जब बच्चे कुछ बात करते रहते तो वो बात करते करते एक ही दम डिस्टर्ब हो जाते। बच्चे भी नहीं, आजकल मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाके देखा, लेक्चर्स में देखा, प्रेजेंटेशन देखते रहता हूँ उनका, बताने के एक रहता है और थोड़ी देर में वो डिस्टर्ब होकर दूसरा एंगल में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आप देखे होंगे खुशी। तो इसमें क्या हो गया बोल तो दे आर फिजिकली एक फ्रेम कर लिए मेंटली प्रेजेंटेशन, उसमें से हट के बात कर रहे हैं। तो दिस इज द वन वेयर बीइंग फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स। माने उनको कहाँ रहना है वही बात करना है। माने उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलते हैं। एक्चुअली इसका रियल बीइंग का रियल अगर बोलना है हिंदू धर्म में, हिंदू सिस्टम में बोलना है, तो इसको हम बोलते हैं स्थिति प्रज्ञता। माने जो स्थिति में आप रहते हो वही स्थिति में रहना है। अपने इंडियन मेडिटेशन में अगर जाके देखे, योगा और मेडिटेशन में ये बीइंग जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत उसको मैच करता है। एग्जाम्पल बताए तो सूर्य नमस्कार हो गया। जो योगा करते, योगा मास्टर लोग कभी भी बोलते कि अगर आप योगा कर रहे हो तो आप योगा जो आसन कर रहे हो उसमें आप इन्वॉल्व हो। कैसे इन्वॉल्व हो? नॉट फिजिकली, मेंटली इन्वॉल्व हो। आजकल आप देख रहे हो सुबह उठ के सब लोग वॉकिंग करते रहते हैं। तो वॉकिंग में क्या करते हैं आप देखे? उन लोग म्यूजिक सुनते रहते हैं। रॉन्ग है। गाना सुनते हुए वॉकिंग करते हैं, वो रॉन्ग है। क्योंकि उनको क्या करना है? म्यूजिक नहीं सुनना है, जो वॉकिंग कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, 2 एंगल शुरू होते हैं उनके ब्रेन के अंदर। एक एंगल शुरू होता है कि गाना, दूसरा एंगल शुरू होता है वॉकिंग। उसमें क्या होता है? घुटना घस जाता है, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट किस में नहीं है? उनके वॉकिंग में इन्वॉल्वमेंट मेंटली नहीं है। तो मेंटली इन्वॉल्व होने के लिए हमको क्या करना है? वी शुड बी बीइंग, नॉट ओनली मेंटली, इवन स्पिरिचुअल भी इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं उसको, बोलते हैं स्थिति प्रज्ञता। 1 सेकेंड मैं बोल रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी विच वी कॉल्ड एज स्थिति प्रज्ञता। फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ कंडीशन में सफर हो रहा है और उनको लगा कि भाई मेरा मेरे हेल्थ कंडीशन कोई रिलीव नहीं कर सकता और मैं क्रॉनिक डिजीज में जाने वाला हूँ, एक फीलिंग आ गया। उसमें से उनको बाहर कौन निकाल सकता? उनको आप कितना भी काउंसलिंग करिए, आप बोलेगे कि भाई मेरा बीमारी इतना ही बढ़ गया कि मैं खत्म होने वाला हूँ, मैं मेरा कोई ये बीमारी इसमें नहीं निकल सकता, ऐसे एक फीलिंग आया है। आप बताइए कृषि कि कोई बीमारी से पहले सफर होगा क्या? बीमारी के फीलिंग से ज्यादा सफर होगा।
ऑब्वियसली विद द फीलिंग। फीलिंग, फीलिंग से क्या होगा, बीमारी और बढ़ेगा। तो वो फीलिंग में से हटाने के लिए एक एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी वही बीइंग है। सब लोग मेरे को पूछते रहते, इतना क्यों फ्रीक्वेंसी लगाया है डॉक्टर साहब, थोड़ा ही फ्रीक्वेंसी लगाना था ना। हम लोग कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जो जो एरिया कवर कर रहे हैं वो एक बार सोचिए कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मेरे को बीइंग के लिए बताना है तो एक दिन इसके लिए जाएगा क्लास, मगर इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट करके बता रहे हैं। आपको सिंपली समझना है कि आपका जो फीलिंग्स है वो आपको जो आपका काम कर रहे हो उसके साथ जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मीटिंग में हो तो मीटिंग में ही रहना है, दूसरा नहीं सोचना है। पूजा कर रहे हो तो पूजा में, प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर में रहो। अगर प्रेयर करते हुए आपको दूसरा याद आ रहा है तो आपका क्या हो गया, फिजिकल मेंटल अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। फिजिकली क्या कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, और मेंटली क्या कर रहे हो, वो माला करते हुए मेंटली क्या कर रहे हो, आप पूजा का जो मंत्र है ना वो पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर चैंटिंग सम मंत्र, बट व्हाट हैज हैपन, योर माइंड इज वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो वो जो बाहर जाना है ना उसको फिर वापस लेके आना। वापस लेके आने के लिए एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी है वही बीइंग। तो इससे क्या हो गया, अगर आप फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट लेने से आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में आप क्या दे रहे हो, आप जो अचीवमेंट कर रहे हो उसको अलाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन वांट टू अचीव एग्जाम में पास होना है, नंबर वन करना है, नहीं तो हेल्थ कंडीशन से हमको बाहर आना है, नहीं तो हमको एक प्रेजेंटेशन, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आप लोग सभी लोग, तो मेरे को परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना है। इन सब एरिया में ये बीइंग एक्सेलेंट काम करेगा। ये आपको सपोर्ट देगा, आपका मेंटल स्टेटस को स्पिरिचुअल पावर से अलाइन करके आपका इंफॉर्मेशन फील्ड को स्ट्रांग करेगा। तो उससे क्या होता, आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में जो आप प्रीवियसली पढ़े, जो प्रीवियसली आप जाने हो, उसको प्रॉपरली आप डिलीवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सब मैं आप लोगों से सुने सब, फिर मैं इसको अलाइन करके आपको बता रहा हूँ। ये अलाइनमेंट कहाँ से आया है, ये आया है बीइंग से। जो लोग अलाइन नहीं कर सकते, एग्जाम्पल इवन माई बीइंग, थोड़े लोग ऐसा भी रिकमेंड करा, जो लोगों को विल पावर नहीं रहता। विल पावर में से एक प्रेजेंटेशन देना तो डर जाते हैं, बात करने में डरते हैं, ऐसे लोगों को आप देखे होंगे खुशी। वैसे लोगों के लिए ये बीइंग प्रोग्राम एक्सलेंट प्रोग्राम है। तो बीइंग इज सच अ प्रोग्राम विच अलाइन द फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इन योर इंफॉर्मेशन फील्ड। तो इंफॉर्मेशन फील्ड को आप दो तरीके से यूज करते हैं। आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को आप यूज भी कर सकते हो, और कुछ लोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीखना है, आप नया चीज सीखना है, नया प्रेजेंटेशन सीखना है, नया मंत्र सीखना है, नहीं तो एक पुस्तक पढ़ना है आपको, तो आपको यू वांटेड टू नो अबाउट दैट ऑल नो कंटेंट व्हाट इट हैज एग्जैक्टली इन दैट सब्जेक्ट, वो आपको सुनना है, देखना है और आपको फील करना है। तो आप यू कैन यूज बीइंग प्रोग्राम। मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये नंबर वन प्रोग्राम है, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्या रहता, जानने की उत्सुकता रहती है। थोड़े लोगों को रहता है जानने जानने के लिए वो स्कूल कॉलेज को जाके बैठ जाते हैं, मगर जान नहीं सकते। वो ऐसे ही आ जाएंगे, स्कूल कॉलेज जाएगा वापस आएगा, कॉलेज जाएगा वापस आएगा। आप जाके पूछे भाई क्या हुआ, आप क्यों इतने दिन से कॉलेज जा रहे हो, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया आपको, वो बोलेगा कि मैं तो सबके सबके जैसे जा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ भी, एग्जाम भी लिख रहा हूँ, मगर मैं फेल हो रहा हूँ। वाई, ही इज नॉट कनेक्टेड। यू गॉट माई पॉइंट। सो वो बच्चा कनेक्टेड नहीं। कब कनेक्ट हो गया, आपको क्या हो गया, बॉडी माइंड सोल इंफॉर्मेशन फील्ड में कनेक्शन करने के बीइंग प्रोग्राम यूज करने से यू विल बी सक्सीड इन योर एजुकेशन इवन। और एक एग्जाम्पल होता, एक कॉमन हाउस वाइफ का एग्जाम्पल बोलता हूँ। कॉमन हाउस वाइफ, एक दिन उनका दिल अच्छा नहीं है और उनका दिमाग भी अच्छा नहीं, दिल और दिमाग उनका डिस्टर्ब हो गया। उस दिन खाना कैसा रहेगा, आप लोग सभी एक्सपीरियंस करते होंगे, मम्मी लोगों का, सभी लोगों का। तो क्या डिस्टरबेंस रहता है उस दिन, मम्मी का अगर माइंड सेट अच्छा नहीं है तो आपको टेस्ट में मालूम हो गया टेस्ट गड़बड़ हो गया। तो टेस्ट कब अच्छा रहता है, मम्मी लोगों का बीइंग, उनके इंफॉर्मेशन फील्ड में अगर वो मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व होके अगर खाना बनाए तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। ये आप एक्सपीरियंस करते होगे सभी लोग, राइट है खुशी। तो अभी देखो कॉमन, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, जब हम हीली के लिए बताते सब लोग बोलते पर सर हीली सोरियासिस के लिए काम करता क्या, हीली शुगर के लिए काम कर, डायबिटीज के लिए काम करता क्या, हीली सर दर्द के लिए काम करता क्या, ये सब हम लोग पूछते रहते। आप समझो हीली जो बना है ये मेडिकल कंडीशन में नहीं बना है,
जो मेडिकल कंडीशन को आपको लेके जाने वाला है उसको बचाने के लिए बनाया है। मैं फिर एक बार ऐड कर रहा हूँ, प्रिवेंशन। आप सुनिए ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बताइए, अगर आपका माइंड और आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा तो आपका मेडिकल कंडीशन आगे जाके बनने वाला है। तो उधर तक हम क्यों वेट करना है? सो व्हाट इज मीन बाय देन प्रिवेंशन? सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज टू मेंटेन योर हेल्थ प्रॉपरली। तो हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन बोलते सब लोग फिजिकल हेल्थ समझ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल हेल्थ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेंटल। अगर मेंटल स्टेटस फिजिकल स्टेटस से अलाइन नहीं हुआ तो क्या हो रहा है? उनका खाना भी खराब हो गया है, एजुकेशन भी खराब हो गया है, और एक आज जो जॉब कर रहे हैं नहीं तो बिजनेस कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा बड़ा बिजनेस बनाए, आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, टर्नओवर इंक्रीज करना है, तो आपका बीइंग, मन का आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहना है, एक बार सोचिए। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट ही आपका बिजनेस में प्रॉपरली नहीं है तो हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट आर योर सेल्फ आर योर सर्विसेज। सो ये जो पर्टिकुलर बीइंग प्रोग्राम के लिए बात करें तो इवन यू कैन यूज इट एज प्रैक्टिकल इन ए पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड नॉट ओनली दैट योर जॉब ऑल्सो। फॉर योर यू वांटेड टू नो शो योर स्ट्रेंथ, यू वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ, यस यूज एवरीडे बीइंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, फिजिकल मेंटल अलाइनमेंट होने से स्पिरिचुअल पावर आता है ऑटोमेटिक। ये आपको कंफ्यूज हो गया होगा, व्हाट इज सोल पावर? सोल पावर माने स्पिरिचुअलिटी में हम लोग चक्रास बोलते हैं, आप सुने होंगे। ये चक्रा बैलेंसिंग भी होता है, फिजिकल मेंटल अलाइनमेंट्स। जब चक्रा बैलेंसिंग होता है तो यू विल गेट दैट पावर आल्सो, स्पिरिचुअल पावर। नॉट ओनली दैट, फिजिकल लेवल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग जो प्रोग्राम है एंडोक्राइनल सिस्टम के लिए नंबर वन है, हार्मोन सिस्टम के लिए, क्योंकि ऑल हार्मोन इज कनेक्टेड टू चक्रास। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज मेनोपॉजल इश्यूज, सपोर्टिंगली आपको उनको यूज करना है। यस, यू कैन रिकमेंड देम प्रैक्टिकली, क्योंकि आप देखते हैं मेनोपॉज में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी पेन्स होता है, बॉडी में सोरनेस रहता है। ये सब क्यों होता है? मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस। तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, मगर जो हार्मोनल चेंजेस से जो साइड इफेक्ट अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ ना, उसको हम लोग बीइंग प्रोग्राम से हम लोग कनेक्ट करके वी आर मेकिंग देम नॉर्मल। तो इस तरीके से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन मार्क क्या है हीली के अंदर, ये मेडिकल में कैसे काम कर, मेडिकल में नहीं काम करेगा। मेडिकल के सिस्टम जो साइड इफेक्ट बन रहे उसको हम लोग इसमें से रिकवर कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट बीइंग। यस डॉक्टर, आज आपने खाली एक फ्रीक्वेंसी नहीं समझाई है, आपने बहुत सारे लोगों का एक ऐसे सवाल का आंसर दिया है ना जो शायद लोग ढूंढते रहते हैं कि मैं पूरा दिन ऑफिस जाता हूँ, सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, पर कुछ भी नहीं होता, मेरा ग्रोथ नहीं होता, मुझे सक्सेस नहीं मिलती। ये बात हम हर घर में सुनते हैं, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं होता कि क्यों। तो आज आपने ये चीज जो बताई है वो बहुत सुंदर बताई है। सबको ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली यूज करनी चाहिए, मैं वही रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर पूछूंगी कि आप लोगों को इसको यूज करके कैसा रिजल्ट मिला आफ्टर 1 मंथ। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच इसको इतने खूबसूरत तरीके से बताने के लिए, और हम डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस करेंगे। और एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि कोई हाउस वाइफ है या मीटिंग के अंदर अपने हीली ट्रेनिंग में, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका गाना अच्छा नहीं बन रहा है तो गाना अच्छा बनाने के लिए आप कोई मेहनत मत करिए, बीइंग प्रोग्राम यूज करिए। आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, बीइंग प्रोग्राम रिकमेंड करिए। आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस में आपका बच्चे को टॉप करना है, बीइंग प्रोग्राम यूज करिए। और आपको ऑफिस में सक्सेस मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ होना है ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए, बीइंग प्रोग्राम। और हीली को आप दूसरों को प्रमोट करने से पहले पहले आप बीइंग बन जाइए। वंडरफुल। मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आज जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, अगले महीने जब हमारा ये सेशन हो तब मुझे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए कि हमने 1 मंथ के लिए ये यूज किया और क्या रिजल्ट मिला। सो आई रियली वांट कि आप ये डेफिनेटली यूज करें। सो डॉक्टर, अब हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली बहुत वन मोर अमेजिंग फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी। एनर्जी जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। हमारे पास कितने भी पैसे हो, कितने भी रिसोर्सेस हो, पर जब बॉडी में एनर्जी ही नहीं होती तो वो सब वेस्ट है। सो हमारे हीली में ये एनर्जी नाम की फ्रीक्वेंसी है। सो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए कि वो क्या है, किस वे में वो हमारे बॉडी को एनर्जाइज करती है, और उसका रोल क्या है। या
तो एनर्जी, एनर्जी माने जैसा यू सेड एवरीवन नीड एनर्जी। आज एनर्जी नहीं है तो लाइफ नहीं है, करेक्ट। तो फिजिकल बॉडी जो चलता है वो एनर्जी से चलता है। आप लोगों को, सब लोगों को एक डेफिनेशन मालूम है, अपना बॉडी सेल से बना है। सेल का स्ट्रक्चर एक बार अंदर जाके देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम खाना खाते हैं वो सब एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप राइस खाओ, रोटी खाओ, स्वीट खाओ, कैल्शियम खाओ, कुछ भी खाओ, अंदर जाके बॉडी में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी सेल्स। फिर बाद में जो हम एनर्जी एसेंस दिए फूड का, उसके हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट को डिवीजन होना, वो डिवीजन होना। एग्जाम्पल में कैल्शियम क्या आया, कैल्शियम बॉडी के अंदर सेल के अंदर गया, वो कैल्शियम सेल्स में कैल्शियम आयोनाइजेशन हुआ, फिर बाद में कैल्शियम आयॉन्स बन गए। कैल्शियम आयॉन्स किधर जाना है, सीधा जाना है बोन को। तो ऐसा अपने बॉडी का जो भी खाना हम खाते हैं वो बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होकर आयोनाइजेशन होता है। और जो जो आयोनाइजेशन से प्रोसेस से आयरन होना, कैल्शियम होना, जो बॉडी में डिपार्टमेंट कौन सा वाइज में वो डिवीजन होता है। ये डिवीजन होने से पहले जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सब एनर्जी में कन्वर्ट होना है। अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो आपका खाना तो क्या होगा, एनर्जी लीकेज। एनर्जी लीकेज का फर्स्ट सिम्टम क्या है, आप सुबह उठे, अच्छा खाना खाए, फ्रेश हो गए और ऑफिस गए, और 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे चाय बहुत लोग बोलते चाय पीना है। क्यों चाय पीना है, अरे थोड़ा सुस्ती हो गया यार, थोड़ा चाय पिए तो कड़क हो जाए। थोड़े लोग तो रॉन्ग रूट में चले जाते हैं कि उनको स्मोकिंग एक हो जाना है, एक सिगरेट पीना है। आप तो थोड़े लोग देखें, बच्चों में भी आजकल हो गया कि भाई चाय पीना है, नहीं तो भाई जाके कुछ रिलैक्स होना है। सो दे वांटेड टू इंक्रीज द एनर्जी। मैं एक जगह देखा था बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लोग एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। मैं बोला एनर्जी ड्रिंक क्यों पी रहे हो, बोले कि स्पोर्ट्स खेलने से पहले हम लोग को एनर्जी चाहिए। मैंने, आपके अंदर एनर्जी नहीं है क्या, क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, आप तो सुबह से खाना खा के बैठे हो, अभी तुरंत एनर्जी क्यों चाहिए। ये सेकंड फैक्टर है विच वी कॉल्ड एज इंस्टेंट एनर्जी। आप तो देखे होंगे इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं मार्केट में। आज आगे जाके मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स मिलते नहीं मिलते, मगर आगे जाके आपको एनर्जी ड्रिंक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे एनर्जी। अभी हर एमएनसी कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी से दे आर कमिंग विथ वंडरफुल एनर्जी ड्रिंक्स। तो उनको भी मालूम हो गया कि आगे जाके क्या होने वाला है, सबको एनर्जी चाहिए। इसके पहले सुबह से शाम तक का काम करने वाले रहते थोड़े लोग, वो लोग थकते नहीं, मगर थोड़े लोग जल्दी थक जाते। तो इस पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज एनर्जी लीकेज। अपने बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो एक कन्वर्शन नहीं हो रहा है, किसमें, एनर्जी। ये एनर्जी में कन्वर्शन नहीं होने का फर्स्ट रीजन है टॉक्सिन्स, माने अड़चन। अपना जो खाना है ना सेल तक नहीं पहुंच रहा है, इसका फर्स्ट रीजन है टॉक्सिन। इसलिए हम लोग प्योर प्रोग्राम फर्स्ट लगाए। तो प्योर के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकते, इली के अंदर नहीं, किधर भी नहीं, हेल्थ हेल्थ सिस्टम में। तो फर्स्ट इज प्योर। तो एनर्जी लीक होने का फर्स्ट रीजन क्या, आप जो खाना खा रहे हैं मगर वो खाना आपको नहीं पच रहा है, माने एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट रीजन है आपका लीकेज ऑफ एनर्जी, दैट इज टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स में फर्स्ट आता है अपना पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, वॉट एवर यू। एंड सेकेंड रीजन होता है एनर्जी कन्वेंशन का स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस नहीं है एंड आप जॉय मोड में हो, तो आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता है, अच्छा रहता है। वही आप स्ट्रेस में चले गए तो आपके एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, ड्रेन आउट हो जा रहे हैं। वही है ना भाई, आपका ही बॉडी है, आपका ही खाना है, तो स्ट्रेस से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये आप समझना है। आप ही वही खाना खाए हो, कल जो खाना खाए वही खाए हो, होना है तो आप एक काम करें, स्ट्रेस में ज्यादा खाना खा लीजिए। मैंने पंच भक्ष परमाणु बोलते हैं, जैसे हम लोग सूरत में खाए थे जो फुल मील सूरत का थाली थाली खा लिया, मगर वो खाना खा लिया फिर भी आप मीटिंग बुलाए कि मेरे को स्ट्रेस हो गया तो मैं तो एनर्जेटिक नहीं दिखूं, करेक्ट। तो एनर्जेटिक दिखने के लिए, एनर्जेटिक बनने के लिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए। तो स्ट्रेस एक अड़चन है वेयर इट विल स्टॉप आवर एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इन आवर सेल। तो ये दोनों चीजें अपने बॉडी को डिस्टर्ब करें।
जब एनर्जी इम्बैलेंस हो गया, इट वी कॉल्ड एज फूड इम्बैलेंस। फूड इम्बैलेंस नथिंग बट ब्लड में फूड का टॉक्सिन बढ़ जाता। उसमें आप देखते हो अगर फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फैट में कन्वर्ट होता है। उससे क्या होता है? ओबेसिटी। अगर आप जो प्रोटीन खा रहे हो, वो प्रोटीन आपके बॉडी में एनर्जी में कन्वर्शन प्रॉपरली नहीं हुआ, अनयूज्ड प्रोटीन्स दे कॉल्ड एज फैट्स। यूज कर ले तो प्रोटीन से, अनयूज्ड करे तो सिंथेटिक प्रोटीन, सिंथेसाइज प्रोटीन बोले तो बॉडी यूज करा, अनसिंथेसाइज प्रोटीन फैट में कन्वर्ट होता है। तो जब फैट में कन्वर्ट होता है क्या हो गया? आपका एनर्जी वेस्ट होके मोटापा आ गया। ये फर्स्ट फेज। और सेकेंड फेज में क्या होता है? यही टॉक्सिन्स अपने बॉडी में एनर्जी जब कन्वर्शन नहीं हुआ, आपका खाना पूरा कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, सेकेंड फेज में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्बेंस, ट्राइग्लिसराइड्स और आपका यूरिक एसिड, ये सब आप सुने होंगे ना। तो जब हम लोग को पूछते सब लोग आके फिर वापस, भाई यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट हीली में है क्या? हीली में यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट क्यों रहेगा? नहीं रहेगा हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं रहेगा, मगर जो बनने का चांसेस जो बढ़ाता ना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, हील कर सकते उसको। ट्रीटमेंट तो डिजीज में नहीं बात करते ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो यार हमको जानना है जो कन्वर्शन ऑफ फूड एनर्जी में जो लीकेज है, उसको अटेंशन करने का एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। सब लोग सोचते हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी बोले कि नहीं कि अरे ये फ्रीक्वेंसी लगा है अपना एनर्जी बढ़ गया है। नहीं 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 नहीं, वो ओनली वन स्टेप। दूसरा स्टेप आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है डेप्थ में। वो क्या करेगा? आपके एनर्जी लीकेज को कन्वर्शन नहीं होते हुए रोके। आपको आपके एनर्जी को परफेक्टली प्रॉपरली कंप्लीटली यूज करे से आपको सपोर्ट करे। आप मेरे को बताइए, जो आप जो डेली खाना खा रहे हो, आप लोग आपके बच्चों को खिला रहे हो, आपके बड़े लोग घर में लोग खिला रहे हो, उनका खाना पूरा उनको एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? ये बड़ा क्वेश्चन है। नहीं हो रहा है तो एक देख जाके आपके मम्मी डैडी घर में अगर बड़े लोग हैं उनको जाके देखिए, थोड़ी देर में वो थक जाते हैं, जाके सोना पड़ता है। आप देखते हैं ना, थोड़े लोग ओल्ड एज होने के बाद 75 70 के ऊपर जाने के बाद उनको एक बार छोटा सा नैप लेना है, तो थोड़ा रिलैक्स करना है, उनको थकावट हो जाती है। वो बोलते हैं कि भाई हम जाएंगे बाहर जाएंगे तो मैं थक गया, मैं नहीं आता हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, नहीं आजकल 40 इयर्स वाले भी बोल रहे हैं, आजकल मैं कहीं घूमने जाया तो वो बोलेगा कि मैं नहीं आता हूँ, मेरे को थकावट होगी, मैं आप जाओ। ऐसा भी मैं देखा है। तो इन लोगों को सबको क्या चाहिए? इन लोगों को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आता है? खाने से आता है। मैं खाना नहीं खा रहे क्या? बढ़िया सा खाना खा रहे, सब लोग सब तरीके से बैलेंस फूड खा रहे, काजू किशमिश बादाम भी खा रहे। सो व्हाट हैज हैपन विद दैट? खा रहे मगर बॉडी को यूज नहीं हो रहा, लीकेज हो रहा है। वो लीकेज को कंट्रोल करने का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, उसके नाम ही है एनर्जी फ्रीक्वेंसी। अब बताइए एनर्जी फ्रीक्वेंसी किस किस को चाहिए? ये प्रोग्राम में अराउंड 160 मेंबर्स है अपन लोग, सब लोग। हम लोगों को एनर्जी प्रोग्राम होना है या नहीं होना है? एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल तो मेडिकल कंडीशन, डायबिटिक है एक जना, डायबिटिक जो बंदा है उसको एनर्जी प्रोग्राम चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी लीकेज के लिए कंट्रोल होता है। उससे क्या होता है? उनके एनर्जी स्ट्रांग होते हैं, दे बिकम एक्टिव। डायबिटिक में क्या होता है? उन लोग एनर्जी डिस्टर्ब होते हैं। उन लोगों को पूछिए आप, वो लोग खुद बताएंगे। हम लोग घबराहट हो जा रहा है, खाए तो कि शुगर बढ़ रहा है, नहीं खाए तो एनर्जी डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमारा स्टेमिना नहीं है, हमारा एनर्जी नहीं है। एथलेटिक्स है जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उन लोग क्या करते हैं? बहुत सारा खाना खाते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता इतना सारा खाना क्यों खाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमको जितना भी खाना खाए एनर्जी कम हो रहा है। खाना खाने से एनर्जी नहीं होता है, खाना कन्वर्शन होता है, पहले ये समझना है। मैं एक छोटा एग्जांपल पूछता हूँ, जो बिल्डिंग मटेरियल में काम करते हैं वो लोग कौन सा बैलेंस डाइट खाते हैं? उन लोग तो 10 फ्लोर 15 फ्लोर चढ़ जाते हैं ईट सर के ऊपर लगाए। बताइए उनको कौन सा एनर्जी चाहिए? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो अपने वैसा बैलेंस डाइट नहीं खाते, माने उनके बॉडी में एनर्जी कन्वर्शन प्रॉपरली है। जिनके बॉडी में एनर्जी कन्वर्शन प्रॉपरली है उनको B12 डेफिशिएंसी नहीं आता, उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं आता। आप लोगों को सबको अगर खाना खाते हुए भी आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ कमी आ रहा है, वो सब किससे आ रहा है?
डेफिशिएंसी कैसा आ रहा है? कन्वर्शन नहीं होने से आ रहा है। आप खा रहे हो, आपका अकाउंट में पड़ा है पैसे, मगर आप यूज नहीं कर रहे। दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी कन्वेंशन. So here on Healy, we have wonderful frequency which we called as energy frequency. This is a wonderful frequency to strengthen your physical energy and also mental energy. Mental energy मतलब, ये एक और एक क्वेश्चन आ गया. मेंटल एनर्जी मतलब फिजिकली फिट रहते हैं वो, उन लोग क्या करते हैं, मेंटली वो फिटनेस को यूज नहीं करते, बोला अलर्ट नहीं रहे. थोड़े लोगों को आप देखे होंगे, बहुत ओबेसिटी वाले, नहीं तो हेल्थ कंडीशन वाले, तो उन लोगों का अलर्टनेस कम हो जाता. माने एग्जाम्पल, वो लोग ट्रैवलिंग में है, नहीं तो किससे मीटिंग में है, वो सोते रहते. ऐसे लोग देखे क्या आप? बात करते करते वो स्लीप मोड में चले आते. वैसे बहुत लोग आपको मार्केट में मिलते रहते. उन लोगों को क्या है, एनर्जी कन्वर्शन का प्रॉब्लम. उन लोगों को कौन सा प्रोग्राम यूज करना? एनर्जी प्रोग्राम. मेंटली अलर्ट नहीं है, स्लीप मोड में आपका बॉडी ऑटोमेटिक जा रहा है और एनर्जीज को आपका बॉडी यूज नहीं कर रहा है. एनर्जीज से आपका बॉडी बूस्ट नहीं हो रहा है, आप जल्दी थक जा रहे हो और ओल्ड एज आ गया. आपकी एनर्जी नहीं रहने से आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हो. इतना क्यों? लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. हमारे जब प्राण जाते हैं ओल्ड एज में, जब भी अपने बॉडी में एनर्जी चाहिए प्राण को हटाने के लिए, मीन्स निकालने के लिए. अगर नहीं, अगर एनर्जी नहीं है प्राण को निकालने के लिए, बहुत थक जाएंगे निकालते निकालते. इसलिए 2-3 दिन, 4-5 दिन लग जाएगा डेथ होने के. तो देखिए, एनर्जी ट्रांसमिशन इज सच ए पावरफुल frequency in a physical body where you can maintain optimum level of strength for lifetime. So this is all about energy. बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने मतलब इतने अच्छे से इसको कवर किया कि ये डायमेंशन हम सोचते भी नहीं है. वी जस्ट थिंक एनर्जी इज इक्वल टू कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, अचानक से हमें पावर आ जाएगा, हम बहुत एक्टिव वर्क करने लगेंगे. बट ये ऐसे इतने छोटे छोटे डायमेंशन आपने बताए हमको कि जिसके बारे में हम शायद दूर दूर तक सोच भी नहीं पाते. विच इज वेरी वेरी वंडरफुल. बहुत मजा आया इसके बारे में सुन के. और डेफिनेटली एनर्जी फ्रीक्वेंसी वो सबको यूज करनी चाहिए जो भी अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फील करता है. ये बहुत अमेजिंग फ्रीक्वेंसी है, मैंने पर्सनली यूज की है एंड आई रिकमेंड कि इसको डेफिनेटली यूज कीजिए. सो डॉक्टर और अपनी और एक यस, सीक्रेट बताता हूँ. अभी आपका प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ एनर्जी प्रोग्राम से. वाओ. Yes. सो अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पास और एक बहुत बहुत खूबसूरत फ्रीक्वेंसी है जिसको हम कहते हैं रिलैक्स. डॉक्टर मुझे बहुत बार बताते हैं, मैंने उनको जब सवाल किया था कि ब्लड प्रेशर कैसे आता है, क्या होता है, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं मुझे कि लोग स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से आता है टेंशन, टेंशन से आता है हाइपर टेंशन, और हाइपर टेंशन लीड करता है ब्लड प्रेशर पे. ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम रिलैक्स ही नहीं कर पाते. तो जानते हैं कि ये रिलैक्स फ्रीक्वेंसी हमारे लाइफ में, हमारे रिलैक्सेशन में किस तरीके से मदद करती है और उसका क्या रोल है. सो डॉक्टर, ओवर टू यू. यस. तो रिलैक्स, रिलैक्स बोले तो ये आप लोगों को उसका वर्ड से ही आपको मालूम हो गया होंगे. अपना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, आप नाम सुने होंगे, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन. Conscious brain means the brain which will act in day-to-day activity, and subconscious brain, it is very powerful than the conscious brain. It we called as a power of total memory information system. तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने का वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है. ये रिलैक्स प्रोग्राम जब मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था मेरे लाइफ में, तो मैं हिप्नोटिज्म, आप लोग सुने होंगे, हिप्नोटिज्म एक थेरेपी होता है. पीपल को ओल्डन डेज में हिप्नोटाइज, अभी भी हिप्नोटाइज करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, जो विल पावर नहीं रहता वैसे लोगों के लिए. तो फर्स्ट टाइम जब मैं हिप्नोटिज्म मैं करता था, मेरे क्लाइंट्स को हिप्नोटिज्म मैं सीखा था, हिप्नोटिज्म के बारे में मालूम है. ये रिलैक्सेशन जो प्रोग्राम है ना, ये हम लोग यूज कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने के लिए. जब एक आदमी हिप्नोटाइज होता है, होने से पहले उसका सबकॉन्शियस में रिलैक्स हुए तो वो इजीली ही कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो उसके लिए हम लोग ये रिलैक्स प्रोग्राम यूज करते थे. तो ये रिलैक्स प्रोग्राम में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी कृषि बता रहे थे, वो स्ट्रेस. आज एक क्वेश्चन मार्क है, किसको स्ट्रेस नहीं है?
ये मीटिंग में 160 मेंबर्स है, किसी को स्ट्रेस नहीं है दुनिया में। और ये जो मीटिंग में है किसको स्ट्रेस नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मेरे को मैं क्वेश्चन डाला कि मेरे को स्ट्रेस है नहीं है, कृषि आपको स्ट्रेस है नहीं है, राम जी आपको स्ट्रेस है नहीं है, आलोक जी आपको स्ट्रेस है नहीं है, दुनिया में किसको स्ट्रेस नहीं है? हम एक बार सोचे तो सभी लोगों को स्ट्रेस है। आज स्कूल के बच्चे से लेके, स्कूल के बच्चा अगर स्कूल को लेट हो गया कैसा रहेगा? अगर स्कूल के बच्चे को मम्मी सुबह जल्दी नहीं उठाई, वहां दोनों को स्ट्रेस है। बच्चे को भी स्ट्रेस है और मम्मी को भी स्ट्रेस है। देखिए अब स्ट्रेस कहीं से शुरू हुआ। माने हम जब पैदा हुए जैसे अभी तक सभी लोगों को स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड करते जा रहे हैं। पुराने जमाने स्ट्रेस आउट करने का एक तरीका था, उसमें फर्स्ट तरीका है रिवर बाथ, नदी में जाके नहाना है, स्विमिंग करना है। पहले बाथरूम नहीं रहता था, आपको तो मालूम इंडियन इंडियन सिस्टम में सीधा जाते थे नदी में जाके स्विमिंग करते थे। तो क्या होता था, उनका स्ट्रेस पूरा रिलैक्स हो जाता था। माने दिन लास्ट नाइट का जो भी, लास्ट दिन का जो भी स्ट्रेस है दिमाग में शरीर में, और रात में सो के उठा और जाके एक स्विमिंग करके आ गया तो पूरा रिलैक्स। अभी भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि मैं जब स्टार होटल्स में जाके रुकता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में जाके, तो वहां देखता हूँ फॉरेनर्स जो भी आते हैं वो जाके सीधा स्विमिंग कर लेते, नहाते जाए सीधा जाके स्विमिंग कर लेते। मेरे को स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज होता रहता था, ये इनको स्विमिंग आता बोल के स्विमिंग कर रहे हैं क्या बोल के सोचता था, ये भी डाउट आता था। ये स्विमिंग आता बोल के नहीं, स्विमिंग वो लोग क्यों सीखे, और सब होटल्स में स्विमिंग पूल क्यों लगाते, क्योंकि वो बॉडी को रिलैक्स करने का मेथड। तो हमको क्या करना है, एकदम बॉडी को रिलैक्स करना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना जो है रिलैक्सेशन का वो है स्विमिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रेस को निकालने का दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, स्लीप। स्लीप मेरे को बताइए, आज ये जो रिलैक्सेशन स्ट्रेस निकालने वाला, अगर आप स्ट्रेस नहीं निकालते हुए रात में जाके सो गए तो आपको नींद आया है क्या? नहीं आएगा। उसके लिए जरिया क्या है, आजकल बता रहे कि भाई मैं स्ट्रेस आउट हो गया तो चिल हो जाऊंगा, तो क्या करेंगे, जाके अल्कोहल ले लेंगे, नहीं तो स्मोक कर देंगे। ये सब आप देख रहे हो गलत चीज जो नहीं होना है, तो इससे और हेल्थ खराब होता है। तो ये जो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है, इट इज अ वंडरफुल प्रोग्राम वेयर यू कैन chill yourself without any toxic related ट्रीटमेंट, जैसा स्मोकिंग हो गया, नहीं तो ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब को अवॉइड करते हुए आपका माइंड को स्ट्रेस से निकालने के लिए एक वंडरफुल प्रोग्राम। ये रिलैक्सेशन प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसको है मानो आपको, जो रिटायर्ड होके घर में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए नंबर वन प्रोग्राम। क्योंकि जब वो काम करते हैं, एक 20 साल 30 साल जब काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में, उनको एक क्या बोलते हैं आदत पड़ जाती है सोचने की, काम करने की। जब आदत पड़ने के बाद वो जाके एक एकदम घर में बैठ गए ना, वो आदत से बाहर नहीं आए, तो क्या होगा उनका, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो स्ट्रेस आउट आएंगे, वो भी क्या करेंगे, घर वालों को भी स्ट्रेस आउट कर देंगे। जो रिटायर्ड होने के बाद इमीडिएटली उन लोगों को एवरीडे रिलैक्स प्रोग्राम लेना ही है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग रिटायर्ड होने के बाद उनको हेल्थ चैलेंजेस शुरू हुए थे, जैसे बीपी शुगर लाइफस्टाइल डिजीज पूरा दिखते रहे। सडनली आज स्ट्रोक आ गया, रिटायर्ड होने से पहले बहुत अच्छा था, एक बार रिटायर्ड हो गया एकदम 1 साल में आज स्ट्रोक आ गया। क्यों? ये स्ट्रेस को नहीं निकाले, उनके बॉडी में इंफॉर्मेशन फील्ड में जो स्ट्रेस था ना, जो काम करने का स्ट्रेस, उसको हटाए नहीं, वैसे का वैसे ही रखे। तो वो कुकिंग हो रहा है, वो मैच नहीं होता घर में बैठ के। बैंकिंग का जो घर का बैंकिंग के मैनेजर में रिटायर्ड हो गया, वो मैनेजर सिस्टम जो थोड़ी घर में रहेगा डे भर, दिन भर नहीं रहेगा, तो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। तो ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आ हुए, गवर्नमेंट जॉब चैलेंजेस जॉब, प्रोफेशनल जैसे टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, इन लोगों को क्या हो रहा है, इन लोग पूरे स्ट्रेस आउट हो जा रहे हैं, डेली स्ट्रेस आउट, डेली चैलेंजिंग। उससे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी, आई कैन से एक्यूरेसी ऑफ द लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीशियस ऑफ उनका काम है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है स्ट्रेस होने। तो उन लोगों के लिए एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी है रिलैक्स। आप थोड़ा भी टायर्ड हो गए, रिलैक्स कर दो, आपको स्ट्रेस को हटाओ। क्योंकि
ये जो टेंशन स्ट्रेस होता है ना, ये लोड करते आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में अनलोड ओवरलोड हो गया, वही जाके आपको होगा टेंशन टेंशन टेंशन। अभी कृषि को मैं हर बार बताता हूँ, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन माने ब्लड प्रेशर। बताइए, फिर टेंशन आप रोज हटाए तो कैसा रहता? अच्छा, आपका बॉडी को रोज मसाज करे तो कैसा रहता? अच्छा, आपका बॉडी को रोज स्विमिंग करे तो कैसा रहता? रोज आपका बॉडी को रिलैक्स करे तो कैसा रहता? आप जैसे रिक्रिएशन जाते हो, आप जैसे फॉरेन ट्रिप जाते हो, तो क्यों जाते हो बताइए? आप फॉरेन ट्रिप जाके आने के बाद आपको क्या लगता है? आप रिक्रिएशन के बाद रिलैक्स लगता है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बोलते हैं कि हमारे कारपोरेट वाले बोलते हैं डेली के, भाई हम लोग बहुत थक गए भाई, ये 5 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं रिलैक्स होने के लिए। अभी जा रहे हैं ना अपने लोग पूरे श्रीलंका के लिए। क्यों जा रहे हैं श्रीलंका, क्यों लेके जा रहे हैं अपने कंपनी? टारगेट करे, वॉल्यूम करे, अचीव हो गए, उनको थोड़ा रिलैक्स करना है ना नेक्स्ट टारगेट के। तो चिल आउट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए जा रहे, एक को एक हार्मोनाइज करने के लिए जा रहे अपने लोग। क्यों? बिकॉज टू रिलैक्स। आप जब रिलैक्स करके काम करें ना, आपका काम का एफिशिएंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपका टर्नओवर क्या होगा? बढ़ेगा। आपका बिजनेस क्या होगा? बढ़ेगा। मैं बताओ, अगर मैं रिलैक्स नहीं हुआ, काम करते गया करते गया करते गया, तो मेरे क्या आता? पैसे तो आते हैं, उसके बाद बीमारी भी आता है। फिर क्या करना? फिर वो बीमारी हटाने के लिए मेरा पैसे खर्च करना। तो अभी क्या करना है हम लोगों को? जैसे हम पैसे कमाने के लिए वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट इन आवर लाइफ। एंड टुडेज लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस आउट। घर से बाहर निकलो स्ट्रेस हो, घर के अंदर रहो स्ट्रेस हो। तो ये स्ट्रेस में से हमारे हमको बचाने के लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी वही है रिलैक्स। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हीली फ्रीक्वेंसी आप रखते हो, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, एक 11 टाइम जब फ्रीक्वेंसी आप लगाओ हैंड रिस्ट बैंड लगा के, और फ्रीक्वेंसी जब रन होता ना, एक 5 टाइम नहीं तो 11 टाइम आप ब्रेन को एक छोटा कमांड दो, रिलैक्स, 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 देन स्टार्ट प्रोग्राम। क्योंकि मैं ये बात भी क्यों बोला मालूम? वो रिलैक्स क्या है सब लोग भूल ही गए। थोड़े लोगों को नहीं मालूम रिलैक्स बोले तो। अरे यार क्या को टेंशन मत लो यार, रिलैक्स रिलैक्स बोलते हैं हम लोग। सुनिए आप लोग ये बात। देखिए, आप फ्लाइट में जाओ तो बहुत लोगों फ्लाइट में मैं देखता हूँ, वहां दरवाजा नहीं खुला है और वहां अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ कि भाई आपका दरवाजा नहीं खुला है, बैठ जाओ, फिर भी उठेंगे और बोलेंगे हमको बाहर जाना है। क्यों ऐसा करते हो वो लोग? क्या आप दरवाजा तोड़ के बाहर जाने वाले हो क्या फ्लाइट का? और दरवाजा भी नहीं खुला ना, फिर ये लोग जो खड़े रहते हैं ना, उन लोगों का क्या मतलब है? माने बैठ के स्ट्रेस होके उठ गए क्या? नहीं तो उन लोग जिंदगी पूरा स्ट्रेस से ही बाहर निकालना है था, इतने देर उनको बंद कमरे में रखने से। माने उन लोग बंद कमरे में नहीं रह सकते, बंद सीट में बहुत देर नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको उठना पड़ा। दैट इज नथिंग बट देर स्ट्रेस। जो लोग फ्लाइट में अनाउंसमेंट के पहले उतर जाते हैं, जो लोग रनिंग ट्रेन से उतरते हैं, जो लोग बस रनिंग बस में उतरते हैं, ये सब स्ट्रेस लोड है। और खाना जब पकाते वक्त हाउस वाइफ भी खाना पकने से पहले ही सब्जी अंदर डाल देते हैं, वो भी स्ट्रेस लोड है। उनको जल्दी कर देना है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से वी आर मेकिंग आवर सेल्फ स्ट्रेस्ड। और इस स्ट्रेस से क्या होता मालूम? फर्स्ट, लाइफ में फेल्यूर। फेल्यूर क्या है? स्ट्रेस आउट होने से, ज्यादा स्ट्रेस होने से आप गलती बोलना, झूठ बोलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना, ये सब आपका कैरेक्टर को डिस्टर्ब करे। तो इसलिए प्लीज मैं पर्सनली सबको रिलैक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, एवरी डे, छोटे बच्चे से लेके, माने अपना हीली फ्रीक्वेंसी का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से 20 ईयर्स से लेके टिल ओल्ड एज एंड एज तक, एवरी डे रिकमेंडेड प्रोग्राम है रिलैक्सेशन। कौन किसको रिलैक्स कर रहे हैं? कॉन्शियस ब्रेन को और सबकॉन्शियस ब्रेन को। और इसके बारे में बताना है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, मगर ओनली इतना बस है कि सबकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है। एंड सबकॉन्शियस ब्रेन इज ओनली द ब्रेन विच विल मेक यू टू वर्क फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। वही पूरा दुनिया चला रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपका स्पिरिचुअल हीलिंग रहता है, सबकॉन्शियस माइंड से आप लोगों का फिजिकल हीलिंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड ही आपका मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये तीनों को रिलैक्स करने का एक ही वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज रिलैक्स, 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 रिलैक्स।
बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और वन थिंग जो मैं आज के जनरेशन में देखती हूँ कि पहले के टाइम पे हम शायद अराउंड 50 पे पहुंचते थे, उसके बाद स्ट्रेस जैसा वर्ड सुनने को भी मिलता था कि स्ट्रेस है। पर आज 19 साल ले लो, 18 साल के बच्चे ले लो, वहां से लेके सारे सारे जनरेशन इज यूजिंग वन वर्ड एवरी डे, आई हैव स्ट्रेस, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। सो जितने भी लोग आज ये देख रहे हैं, आपको कोई भी मिले जो आपके सामने ये स्ट्रेस वर्ड का यूज करे कि आई हैव स्ट्रेस, मुझे तो आज बहुत स्ट्रेस आ रहा है, उसको पकड़ के ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली दो। और फिर यहाँ पे हमारे पास टेस्टिमोनियल लेके आओ कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो आई वांट कि आप सब ये टास्क डेफिनेटली अपने नेक्स्ट 1 मंथ में करें। सो अभी हमारी गोल्ड पेज की लास्ट फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ते हैं क्विकली, विच इज रिलीज। रिलीज मतलब कि बॉडी में जितना भी चीज है, जो भी चीज है, रिलीज वर्ड का मतलब होता है निकालो, हटाओ, उसको रिलीज करो। सो डॉक्टर से सुनते हैं कि व्हाट इज रिलीज फ्रीक्वेंसी, उसको क्या पर्पस है, और वो हमारे बॉडी माइंड सोल में से क्या चीज को रिलीज करता है। ओवर टू यू डॉक्टर। अभी एनर्जी के लिए जब बात कर रहे तो हम लोग बोले थे कि एनर्जी लीकेज बोले नहीं, तो एनर्जी लीकेज के लिए टॉक्सिन्स अड़ा हो गया है। इसी तरीके से जब टॉक्सिन्स अपने बॉडी में, इमोशनल टॉक्सिन्स, ये सुनिए आप लोग, इमोशनल टॉक्सिन्स बोलते हैं, इमोशनली स्ट्रेस हो जाना, इमोशनली फील होना, और कुछ हर्ट हो जाना, जिंदगी में कुछ बातें ऐसा सुनना, और फिजिकल हर्ट, ये सब जो भी है पेन लेके आता है। आप लोगों को पेन मालूम ना? पेन तो आई थिंक सब घर में आजकल कॉमन हो गया। मैं बोलता हूँ कि पेन नहीं सो घर दुनिया में नहीं, इंक्लूडिंग मेरा घर भी। सही है ना? तो ये पेन जो होता है वो अपने बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट होता है, वो डिस्टर्बेंस होता है। ये पेन को रिलीज करने का एक वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है रिलीज। ये पेन बोल तो क्या पेन है, एक फर्स्ट आपको समझना है इमोशनल पेन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आपको जो समझ में नहीं आया वो चीज कंटिन्यू बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। थोड़े दिन में आपको क्या, थोड़ी देर में क्या होता है, आपको सर दर्द होता है। आप बोलेंगे भाई अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, मैं सर दुख रहा है यार, बंद करो यार। मेरे को बताइए, वो उसका कुछ स्टोरी आपको बता रहा है और वो आप बैठ के सुन रहे हो, तो आपको सर दर्द कहाँ से आया है? बताइए ना, सर दर्द कहाँ से आया है? वो तो उसके बाद वो बोल रहा है आपको, उसके बाद तो आप सुन रहे हो, तो सर दर्द कहाँ से आया इन मैटर? तो देखिए, दिस वी कॉल्ड एज इमोशनल पेन। माने आप उसको सुनते 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 इतना इमोशनल हो गए, उसको कनेक्ट हो गए। वो कनेक्शन से क्या हो गया, उसका इंफॉर्मेशन फील्ड आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को ट्रांसफर कर लिया, और आपका इंफॉर्मेशन फील्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करा, और आपको क्या आया गया? पेन। वही हेडेक। हेडेक आता ना भाई, सबको आता ना। अगर मैं ये प्रोग्राम 1 घंटे में बंद करा तो आपको कोई, किसी को हेडेक नहीं आएगा। अगर मैं अच्छा ही बताते बताते और 1 घंटा बताया ना, आप लोगों को क्विट हो जाएंगे, आपको भी हेडेक शुरू हो जाएगा। हमारे कारपेट वाले बोलेंगे डॉक्टर साहब ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे आप। क्योंकि सुनिए आप इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हो, वी हैव लिमिटेशन। अच्छे के लिए भी लिमिटेशन है, और हम सुनने का जो कैपेसिटी है उसके लिमिटेशन है। अच्छा भी रहने दो, बुरा भी रहने दो। वो लिमिटेशन जाके आपका बॉडी को आप एक्सेलरेट करें तो आपके बॉडी में जो डिस्कम्फर्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेन। एग्जाम्पल, ये हाथ है, इसको मैं ऐसा ऐसा रिस्ट को घुमा रहा हूँ, 10 बार घुमाया तो पेन नहीं आएगा, अगर 100 बार घुमाए तो पेन पैदा हो गया। ये कहाँ सब पैदा हुआ? आपका ब्रेन बोलता है आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप काम कर रहे हैं। पेन मीन्स इट इज अ सिम्टम ऑफ मेकिंग, मीन सेइंग योर बॉडी दैट ये आप इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। उसको हम लोग पेन बोलते हैं। आपका सोच ज्यादा हो गया, पेन आएगा। आपका काम ज्यादा हो गया, पेन आएगा। पेन मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। तो ये पेन आ गया। पेन होने के बाद भी फिर भी आप करें तो क्या होता नेक्स्ट स्टेप? क्या होता मानो आपको? पेन होने के बाद आप फिर भी मूवमेंट करो रिस्ट का, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आने के बाद फिर वापस आप फिर रेस्ट को मूवमेंट करते जाइए। पेन के बाद इन्फ्लेमेशन है, नेक्स्ट क्या होता मानो आपको? ये हिलना बंद हो जाता, स्टक। वी कॉल्ड एज फ्री स्टेज। पेन इज कॉल्ड वेपर स्टेज, एंड नेक्स्ट पेन इज इन्फ्लेमेशन पेन, एंड थर्ड पेन इज वी कॉल्ड एज फ्रीज पेन, माना आइस पेन, माना सॉलिड हो गया। फिर आपका बॉडी बोलेगा इसको मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप ज्यादा कर दिए। तो एनीथिंग
which is more than your body action, physical or mental, वो डिस्कम्फर्ट को हम लोग पे उसके ऊपर काम करेगा रिलीज। ये क्यों बताया? आपको इन्फ्लेमेशन पेन में रिलीज काम करेगा, आपको वेपर फेज में रिलीज प्रोग्राम काम करेगा, आपको सॉलिड फिक्स फेज में भी रिलीज प्रोग्राम। माने जो बॉडी में आपका ब्रेन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पेन रिसेप्रेट रहते हैं, वो क्यों डेवलप है? क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके तो पेन डेवलप हो गया, फिर उसको वापस कैसा लेके जा सकते? एक छोटा सा एग्जांपल है, आपका उंगली को ऐसा बांध दीजिए, एक 1 मंथ ऐसे ही रखिए बांध के, फिर 1 महीने के बाद आप खोल दीजिए, कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा? ऐसा मूवमेंट होगा? ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको डिस्कम्फर्ट स्टेज को लेके गए, ऐसे ही रहेगा। फिर इसको सीधा करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी करते हैं। कितने दिन फिजियोथेरेपी? 1 महीना अगर आप रखे तो आपको कितने दिन लगा मतलब ये सीधा होने को? 6 महीने लग जाए फिजियोथेरेपी करते मूवमेंट आने को। क्योंकि ये चीज मैं क्यों बताया, अपने बॉडी में जब रिस्ट्रिक्ट करते हो सिस्टम को, बॉडी इतना रिवर्स काम करता है मैकेनिज्म कि उसमें से बाहर आने को हमको टाइम लगता है। पेन आना 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है, पर पेन जाने के लिए बहुत देर लगेगी। घुटना घसने के लिए, घुटने को घसाने के लिए 10 साल लग जाएंगे, मगर उसमें से पेन में से निकालने के लिए जिंदगी लग जाएगी। इसलिए आप देख रहे हो आज पेन के लिए कितना सफर हो रहा है। पेन का रियल हीरो, रियल अगर पेन क्या चीज है रियल आपको जानना है तो जाके पूछो जो पेन से डील कर झेल रहा है। मेरे पास ऐसे लोग आते कि उनको वॉशरूम जाने के लिए प्रॉब्लम है, पेन से, घुटने के दर्द से। वो बोलते मेरे को घुटना कटाना ही है। क्यों? क्योंकि हमको वॉशरूम जाना मुश्किल हो गया, नी रिप्लेसमेंट करना है। ऐसे बहुत आते मेरे पास। मेरे को एक एक बार समझ में नहीं आता क्यों इन लोग इतना घुटना घसने से क्यों वेट करें लोग, पहले इन लोग क्यों इलाज नहीं कराए? अगर पहले ही इनका इलाज होता तो इतना क्यों इनको तकलीफ होता? अगर पहले ही आपको घुटने के दर्द निकालना है ना, तो वी हैव वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर यू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वंस अगेन आई एम एडिंग दैट वर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर हीली फ्रीक्वेंसी लाइफ, वो है रिलीज प्रो। आज पेन हुआ आज ही हटा दीजिए, आज का होमवर्क आज करिए। आज हेडेक आया आज हटाइए, उसको माइग्रेन तक मत जाने दीजिए। आज नी पेन हुआ, आप ट्रेवलिंग में खड़े रहे ज्यादा देर, उसको नी पेन हो गया, बैठने से नी पेन हो गया। आज ज्यादा पढ़ने से नेक पेन हो गया, ज्यादा झुक के कामने से बैक पेन हो गया। मेरे को अचानक ड्राइव एंजॉय करना था, हस्बैंड को ड्राइव एंजॉय करना है, वाइफ को कमर दर्द आ गया। ये देखिए, एंजॉयमेंट में वाइफ को गिफ्ट आ गया। क्या? हस्बैंड को तो ड्राइव पसंद है, वो तो कार में लेके चले गए 500 किलोमीटर, वाइफ को कमर में दर्द आ गया। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को? मैं बताता हूँ, हस्बैंड के साथ आप जाइए और रिलीज प्रोग्राम लगाइए, पेन हटा दीजिए, उसी दिन आपके डिस्कम्फर्ट को निकाल दीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पेन किलर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट पहले आता क्या, पेन पहले आता क्या? डिस्कम्फर्ट पहले आता। फिर वो स्टेज में अगर आप आपका पेन को रिलीव कर दिए, वेर इज अ पॉइंट ऑफ इंफ्लेमेशन, वेर इज अ पॉइंट ऑफ स्टक, डिकम्पोजिशन, डिफॉर्मेशन, एडिमा, ये सब कहां से आता? सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डिस्कम्फर्ट। आज सर दर्द हुआ, आज नेक पेन हुआ, आज मेरे को फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग बेटर इन माई लेग्स, यस, यूज रिलीज प्रोग्राम। ये रिलीज प्रोग्राम काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 एरियाज। फर्स्ट एरिया इज फिजिकल एलिमेंट, सेकेंड एरिया इज मेंटल एंड इमोशनल एरिया ऑल्सो। अभी मैं बताया मेंटल इमोशनल का स्टोरी, बहुत सारा दूसरों को सुने तो आपको हेडेक आता, वो बाहर से आया। थोड़े लोगों को इमोशनल ब्लॉकेज से भी नेक पेन होता है, थोड़े लोगों को इमोशनल बैक पेन ब्लॉकेज से भी, डिस्कम्फर्ट से भी बैक पेन होता है, थोड़े लोगों को इमोशनल ब्लॉकेज से भी नी पेन होता है। ये मेडिकल कंडीशन में नहीं मालूम होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मालूम होता है। तो वी कॉल्ड एज इमोशनल पेन एनीवे। तो अपना ईली का रिलीज प्रोग्राम है, रिलीज का प्रोग्राम दोनों में भी काम करता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड मेंटल इमोशनल डिस्कम्फर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलीज प्रोग्राम। बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत मजा आया ये सारा इंफॉर्मेशन लेके।
सब कुछ सुन के। और ओवरऑल आपने हमको हीली का गोल्ड आज परोसा है। सो जिसको भी ये गोल्ड साइकिल का एजुकेशन वाला सेशन अच्छा लगा, आई रियली वांट आप सब अभी कमेंट सेक्शन में जाके टाइप द गोल्ड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो, बिकॉज जेन्यूनली हमने नॉलेज का गोल्ड गेन किया है। सो एंड टू ऑल द पीपल हु आर रिक्वेस्टिंग अस टू टेक दिस सेशन इन इंग्लिश, we are listening to you, but there are so many people who are unable to understand English, and there are so many people who are unable to understand Hindi. So we will try to use the combination of both the language in from the next session. So श्योर। don't worry, learning बिल्कुल नहीं रुकेगा और हम improvise definitely करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप सब लास्ट तक यहाँ पे मीटिंग में हो हमारे साथ। एक लास्ट क्लोजिंग में एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों सभी लोगों को। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, गोल्ड साइकिल। देखे ना, उसका नाम लगाया हम गोल्ड साइकिल। आपको मालूम गोल्ड साइकिल इसका नाम क्यों आया? क्योंकि आप लोग मालूम, वेल्थ को हम वेल्थ वेल्थ को हम लोग किससे तोलते हैं? गोल्ड से तोलते हैं। अपने इंडियन सिस्टम में मालूम है किसके घर में ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं उनके घर में लक्ष्मी की आवास होती है। इसलिए हम लोग गोल्ड खरीदते खरीदते हम लोग वेल्दी कंट्री बन गए दुनिया में। आप टेम्पल्स में भी जाओ, गोल्ड रहेगा, बहुत सारा गोल्ड रहेगा। माने वेल्थ रिप्रेजेंट करता है गोल्ड। ये गोल्ड साइकिल क्यों हम लोग लगाए मालूम? हम लोग वेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ साइकिल लगाए तो आपको समझने में मुश्किल होता है। उसको सिंप्लीफाई करते हुए उसका नाम गोल्ड साइकिल आ गया, हेल्थ साइकिल। हेल्थ ही वेल्थ है ना, इसलिए हम लोग इसका नाम गोल्ड साइकिल लगाए। सो थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Thank you very much, Dr. Saab. Uh, this was amazing, mind blowing, and like, share, and subscribe types. Yeah. So this is just a start. I'm telling you, we are going to have amazing programs throughout the year, and we have lots and lots of plans. To enhance the business building process, the leadership development process. And दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं, मैं आप सबको बता दूं, and I'm enjoying this, and I wish you all the very best. And before I sign out, I must tell you one thing, that मेरा favorite program, Dr. साहब, relax or release है. So these are the two programs I keep running all the time, at least 2 to 3 times a day, so that I am what I am in front of all of you. And release is something that whenever you are having a lot of things, and then you need to be at the pace with the kind of energy that you two have, and the kind of energy that this 200 odd people had to stay back till the end of the program. I'm really, really very, very thankful. There are lots of people. I can see Dr. Ashka also from Surat. Uh, and I can see so many people, so many faces. I trust me, this is just the start. And keep supporting such programs. Amazing. Keep promoting these programs in your groups, and keep getting more and more people in your group. So as I always say that अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सब लोग, thank you so very much. Have a great weekend ahead. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, the marketing team, to supporting this program. Thank you, Ram, for being there.